through more than 340 APIs that we have developed over past couple of years, we have been able to bring a lot of partnerships in the market, integrated partnerships in the market, wherein we have collaborated with the large, accounting softwares through our APIs, and the best in class products that we have brought in the market. So Busy is the latest, partnership that we would like to, showcase to you, and we'll take you further on this. But before we go into the product, let me also introduce you something about ICICI Bank Partnership Program. So ICICI Bank Partnership Program is basically a very democratic and open program where anyone can join ICICI Bank Business Banking CMS Partner Program, and basically it once you become our partner, you will be able to give or offer ICICI Bank transaction banking products like payment gateway, other APIs to your customers, and not only your customers will get the enablement on different type of transactions through these solution, but you also will have, it will also be helpful for you to earn revenue over the through this program. So there are multiple type of products that we are offering in this partnership program, which is like payment and collection APIs, bill payment APIs, APS APIs, a lot of plugins that we have also created uh, with the help of our APIs. And ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है अपने पार्टनर्स के लिए, जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी आर ऑफरिंग इन द मार्केट, दैट आई जस्ट talked about, including payment gateways and other APIs. We can go to the next. Yeah, so the partnership program that I spoke of. सो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए बहुत ही एक सिंपल हमने एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जो कि अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे वंस वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट प्रपोजिशन ऑफ बिजी प्लगइन इन द मार्केट. आप सभी जाके उस पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं, so that when once you refer any customer for the product, so that you will be eligible for the revenue. So all that you will refer the to your customer, जो भी आप कस्टमर को रेफरेंस देंगे, आपको इस पोर्टल पे ही आपको जो है सारा उसका आपका क्या आपने कितने रेफरेंस दिए हैं, उससे कितना रेवेन्यू एक्रू हुआ है, आपका कितना रेवेन्यू ड्यू हो गया है, and all that will be available on this portal that we will be sharing with you. So this is very easy to register this through for this partnership program, and Adipta and Shivinder, who are there on the call, are managing this piece of business for ICICI Bank, and we will have some relationship managers who will be reaching out to you, who are dedicated partnership sales manager and relationship managers who will help you onboard on ICICI Bank partnership program and start referring business and start earning revenues. Now I will not waste much time. I will straight away come to the plugin that ICICI Bank and Busy have together created for your customers, and I will introduce this product to you. And this is first of its kind that ICICI Bank has done in the market, and this is basically the API that is integrated on a plugin, which can be basically downloaded by any customer instantly, and you can start using it instantly without having to do any kind of an integration with the bank. तो अगर आज पुराने टाइम पे कोई भी कस्टमर हमारे पास आता था बिजी का, और वो हमसे अपने अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हमारी एपीआईज के थ्रू इंटीग्रेट करना चाहता था, तो हम उसको अपनी एपीआईज एक्सटेंड करते थे, और जिसको इंटीग्रेट करने में उसको काफी समय लगता था और काफी पैसा लगता था. With this kind of a solution,
ये प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है। अब कस्टमर को कहीं जो है कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, केवल एक प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहां से प्लगइन डाउनलोड करके और ही कैन स्टार्ट यूजिंग। सो ये कंपैरिजन आपकी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि दिस इज अ कंपैरिजन दैट वी हैव क्रिएटेड कि हम ये प्लगइन जो अभी हमने मार्केट में जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा और उस अभी तक क्या होता था। तो अभी तक हमको जो है अगर वन टू वन किसी बिजी कस्टमर के साथ इंटीग्रेशन करना होता था, तो जैसे मैंने बोला 15 से 20 दिन का इंटीग्रेशन टाइम लगता था, पैसा लगता था। हम उसको जो है सेटअप फी चार्ज करते थे 25,000 रुपए की। बैंक यूज टू चार्ज 25,000 रुपीज। नॉट ओनली दैट, देर वॉज ए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द क्लाइंट एंड ऑल्सो ऑन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उसको वो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती थी, जो कि अब इस प्लगइन से जो है ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप आपको कस्टमर को कुछ नहीं करना है, एक प्लगइन डाउनलोड करना है और इसके लिए कोई भी पेपर वर्क नहीं है, कोई भी किसी किसी प्रकार का किसी भी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म एग्रीमेंट कुछ नहीं साइन करना बैंक के साथ। और हम 25,000 रुपए की जगह जो हम इंटीग्रेशन करते थे अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, अब हम ये जो है जो प्लगइन जो हम कस्टमर को देंगे वो केवल 5,000 में देंगे, और जिसमें आपका इंसेंटिव भी इंक्लूड होगा। अगर मैं फीचर्स की बात करूं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो प्लगइन में, तो प्लगइन जैसे ही कस्टमर डाउनलोड करेगा, वंस ही इज एबल टू डाउनलोड द प्लगइन, he will be able to make the customer will be able to make payments directly from the busy platform without leaving the busy platform. He can make the all kinds of vendor and salary payment. Not only that, he doesn't have to go to the branch जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक के प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। उसको अपना आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस, उसकी बैंक स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल विदिन विदिन बिजी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसको सब कुछ मिलेगा। जब बैंक स्टेटमेंट की बात की मैंने, तो बैंक स्टेटमेंट हम जो उसके अगर प्लगइन से जो है अगर उसको बिजी प्लेटफॉर्म के अंदर उसको आईसीआईसीआई बैंक की बैंक स्टेटमेंट मिलेगी, तो उसका रिकंसिलेशन जो होगा, जो बैंक बुक का और अकाउंट बुक का जो 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 रिकंसिलेशन होगा, दैट विल बी एन ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन दैट विल हैपन विद इन बिजी। सो कोई भी मैनुअल एफर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कस्टमर को टू मैच और रिकंसाइल द बैंक बुक एंड द बिजी अकाउंटिंग बुक। हम इसमें एक और फीचर हम अभी लेके आए हैं, विच इज नॉट available as a default, but if a customer wants, we can activate that feature also. So a lot of customers would want to identify key who has sent the money to them through RTGS, NEFT or IMPS or UPI. So we have integrated our e-collection API also, wherein any money, if it is being sent to a virtual account, तो हम जो है वो कलेक्शन भी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा अभी ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये तो अभी शुरुआत है। अभी हमने बिजी टीम के साथ अभी हमको और भी इसके अंदर और भी बहुत कुछ लेके आना है, दैट विल कम इन वेरी नियर फ्यूचर। but this will solve a lot of the problems for the customer who would want his transaction right on the busy platform. Next, so this आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है जो 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 दिखा रही है कि बेसिकली कि इसका फायदा क्या है इस प्लगइन का। तो सबसे बड़ा फायदा जो है इसका है रिकंसिलेशन। तो अभी हम जब कस्टमर से बात करते हैं और उनसे उनसे हमको समझ में आता है कि बैंक रिकंसिलेशन बीआरएस जो है एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी परेशानी है और एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट कंज्यूमिंग काम है कि अपने बैंक स्टेटमेंट से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो एंट्रीज हैं, लेजर एंट्रीज हैं, उनको रिकंसाइल करना। तो वो उसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड स्टाफ बैठाना पड़ता है कस्टमर को, जो कि पहले बैंक स्टेटमेंट फेच करता है इलेक्ट्रॉनिकली और या फिजिकली, और फिर इसको एक एक करके जो है मैनुअली जो है अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म पे नॉक ऑफ करता है एंट्रीज को, ताकि बैंक बुक और आपकी अकाउंट्स बुक जो है बराबर हो जाए।
विद दिस फीचर मैंने जैसे बताया कि reconciliation will be an effortless, so there will be an auto reconciliation which will happen within busy platform because the bank statement will be fetched automatically. You can go to the next slide. So I think I've already spoken about the advantages. मैं दोबारा से आपको ये स्लाइड पे एडवांटेजेस हम दिखा रहे हैं कस्टमर्स को क्या है। तो कस्टमर के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो गया, बैंक का प्लेटफॉर्म और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म उसके लिए अब एक होगा। उसको आईसीआईसीआई बैंक के प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये जो प्लगइन है ये कंप्लीटली सिक्योर्ड है। इसका जो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे दैट विल बी ओटीपी वेरीफाइड ट्रांजैक्शन। ओटीपी विल बी जनरेटेड फ्रॉम द बैंक सिस्टम, सो दिस इज कंप्लीटली सिक्योर्ड। बहुत सारे जो है हमारे बिजनेस बैंकिंग कस्टमर जो होते हैं उनको जो है ट्रांजैक्शन के बाद में ऑथराइजेशन चाहिए होता है। तो मेकर चेकर कंसेप्ट जो है दैट कैन बी दैट इज बाय डिफॉल्ट। सो ट्रांजैक्शन अगर बिजी के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट हुआ है और उसको जो है ऑथराइजर आईसीआईसीआई बैंक के प्लेटफॉर्म पे ऑथराइज करना चाहता है तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। सो एफर्ट और टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और इसका जो है एक्टिवेशन इज सिंपल एंड इंस्टेंट, तो नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। आपके लिए इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, जो बिजी के कस्टमर हैं या जो नए कस्टमर जो आप एक्वायर करेंगे, तो आपके लिए जो है रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक नया नया आपका एक नया फीचर है आपके पास जिसको आप कस्टमर को दे सकते हैं। आपको हर प्लगइन के पे आपको देयर इज अ इंसेंटिव दैट busy and busy partner have devised, so that will be applicable, आपको मिलेगा वो। और आपकी जो है ओवरऑल एफिशिएंसी, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है फॉर योर कस्टमर, दैट विल इम्प्रूव। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड जो है ये आपको हम आपको जो है इस प्रोडक्ट के कमर्शियल के बारे में बताते हैं। तो हमने बेसिकली इसको 10,000 का हमने इसको प्राइस किया था। but with your feedback and lot of support that has come with busy central team, हमने इसको प्राइस को हम इसको काफी कुछ रिड्यूस कर पाए हैं। एंड हम इसको जो है 5,000 रुपीज में वी विल इंट्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर योर कस्टमर, 5,000 प्लस जीएसटी। and this subscription for 5,000 will be valid for 365 days. First year there will be no AMC, and from the second year there will be an AMC of rupees 1,500 that will be applicable. This price of product and AMC includes your incentive. So let us see what is your incentive that will be applicable. So partner payout for each plugin is 2,500. So 5,000 रुपए का जो 5,000 रुपीज का जो आपका प्लगइन है उस पे जो आपको इंसेंटिव मिलेगा दैट इज 2,500, एंड दिस इज अ इंट्रोडक्टरी ऑफर। ये जो है इंट्रोडक्टरी ऑफर है। ये 30 जून तक एप्लीकेबल है। जैसे ही हम लॉन्च करेंगे तो हम इसको एक महीने 1.5 महीने के लिए आपको 2,500 का इंट्रोडक्टरी पे आउट मिलेगा। उसके बाद 1 जुलाई से द पे आउट विल बी 1,500 रुपीज। एएमसी जो हम कस्टमर से 1,500 रुपए की कलेक्ट करेंगे उसमें उसमें जो है आपको आपका 50% जो है आपका रेवेन्यू होगा। ऑल दिस रेवेन्यू दैट you will be paid, it will be paid either by busy directly to you or the technology service provider of busy. They will make the payment directly to you once the sale is completed. Next please. कोई भी प्लेटफॉर्म बिना सर्विस सपोर्ट के जो है नहीं चलता। तो हमने जो है आइडेंटिफाई किया है कि 3 तरह की सर्विस जो है आ सकती है, जो सर्विस क्वेरीज आ सकती हैं कस्टमर से। सो अगर किसी भी प्रकार का अगर ट्रांजैक्शन के से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कस्टमर की, तो वो जो है हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक का जो अपना सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट
desk है that is available around no 6 days a week during the business hours to support you basically any kind of transaction related issue that the customer has. If there are any plugin related issues, so that will also be available instantly on the platform itself. And there will be basically a dedicated email ID and a number that will be given on the platform itself for any plugin related whether it's a teething issue or after sales issues that will get resolved. एंड अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपसे बेहतर कोई मतलब उनको सर्विस नहीं करता. आप ऑलरेडी सर्विस कर रहे हो अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी इश्यूज है. तो तीन ही तरह के इश्यूज आएंगे, ट्रांजैक्शन रिलेटेड, प्लगइन रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड. तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप संभाल लोगे, ट्रांजैक्शन रिलेटेड बैंक संभाल लेगा, और अगर प्लगइन का रिलेटेड कोई भी इशू है तो हमारे जो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्होंने बिजी के साथ मिलके ये platform plugin बनाया है, so they will be taking care of, and all that will be available on the platform itself. Next, so onboarding process plugin का बहुत ही simple है. आपको ये prerequisite है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कि विंडो XP एंड अबव चाहिए कस्टमर को, BZ 16 एंड अबव का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कस्टमर के पास आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए. सो ऑल दिस फीचर इज अवेलेबल ओनली फॉर आईसीआईसीआई बैंक करंट अकाउंट कस्टमर्स इन इंडिया. सो वी हैव मोर देन 2 मिलियन, हमारे पास 20 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट कस्टमर हैं आज की तारीख में इंडिया में. उन सभी कस्टमर के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और साथ में जो भी कस्टमर इसको यूज करेगा उसके पास आईसीआईसीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होना जरूरी है, तभी वो इस जो है प्लगइन को यूज कर सकता है. हम अब सीधे डेमो पे जा सकते हैं. आपको लाइव डेमो हम दिखाएंगे कि ये प्लगइन कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और इसको फिर कस्टमर कैसे यूज कर सकता है. डेमो के बाद हम आपको जो है आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको हम ले सकते हैं. तो आई विल हैंड ओवर दिस टू माय कलीग शिवेंद्र एंड नितिन देवान, and they will help you understand this through a live demo. Over to you, Nitin. Thank you. Boss, thank you, boss. Thank you, Amit sir. Aditya, can you just confirm मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Yeah, your screen is visible. Yeah. Yes. ठीक है. Thank you, boss. Thank you, everyone. So अभी we'll go for the live demo. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारे को प्लगइन डाउनलोड करना है तो हमें कहाँ पे जाना है. So एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है bankplugin.com. कस्टमर bankplugin.com पे जाएगा. So ये bankplugin.com का प्राइमरी फेसा है जिसमें आपको बेसिक डिटेल्स सारी दिखती हैं कि बैंक प्लगइन क्या सर्व कर रहा है, क्या उसके फीचर्स हैं, what all advantages a customer will get from this particular platform, एंड किस तरीके से ये काम कर रहा है, रजिस्टर इंस्टॉलेशन कैसे होगा, एवरीथिंग यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है. जब कस्टमर यहाँ पे गो थ्रू कर लेगा तो वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे फर्स्ट टाइम. बहुत सिंपल सी डिटेल्स दी गई है रजिस्टर करने के लिए. यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा. मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जो मैं डालूंगा ये हर टाइम मेरे बिजी के प्लेटफॉर्म में ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा. सो प्लीज वही मोबाइल नंबर डालें जो कस्टमर हमेशा अवेलेबल कर पाए एंड उसको हर बार यूज कर पाए. यहाँ पे मेरा बिजी का सीरियल नंबर, जो बिजी का सीरियल नंबर लाइसेंस नंबर मैं यूज कर रहा हूँ. ये हमारी पार्टनर आईडी है. दिस पार्टनर आईडी विल बी द आईडी जो अभी जैसे अमित सर ने आपको दिखाया कि जब एक पार्टनर हमारे कोई भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं उनको एक एलोकेटेड पार्टनर आईडी होगी जिससे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस पार्टनर के थ्रू कस्टमर रेफर हुआ है. यहाँ पे आरएम आईडी या आईसीआईसीआई बैंक एम्प्लॉय के लिए है. सो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, अगर चाहे तो मैं कुछ डाल सकता हूँ. यहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ. यहाँ पे मैंने कंटिन्यू क्लिक किया टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके.
आई विल रिसीव एन ओटीपी ऑन दी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो ओटीपी अभी मैंने नंबर डाला है। नाइन फाइव वन नाइन। ओटीपी डालने के बाद आई विल क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सो ये वेलकम पेज आ जाएगा, जिसमें बेसिक डिटेल्स हैं जो प्लेटफॉर्म की अभी हम करंटली ऑफर कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे प्रोडक्ट के फीचर्स, डिटेल समरी, अगर कोई कस्टमर देखना चाहता है कि कब तक उनका वैलिड है, सब कुछ इसमें आएगा। अभी जब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि अगर कोई क्लाइंट पेमेंट करने से पहले देखना चाहता है कि उनकी जीएसटी की डिटेल्स इनपुटेड है या नहीं है, सो वहां पे माय प्रोफाइल में जाके वो अपनी जीएसटी की डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं, सो दैट जो अब वो पेमेंट करेंगे 5000 प्लस जीएसटी की, उसमें वो जीएसटी का क्लेम ले पाएंगे। मैं दोबारा होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर सब्सक्रिप्शन, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है कि ऑफर पीरियड में हम 5000 प्लस जीएसटी का दे रहे हैं। अभी के लिए मैं अगर इसमें क्लिक करता हूं तो ये आएगा सीधा 5900 रुपीज का। डेमो करने के लिए मैं इसमें एक कोड लगा रहा हूं जो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए वैलिड रहेगा। ये हमारा पेमेंट गेटवे का पेज खुल गया। सो कस्टमर कोई भी पर्टिकुलर मोड से पेमेंट कर सकता है क्लाइंट उस ऑन द स्पॉट, चाहे कार्ड्स हो, यूपीआई क्यूआर कोड हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर। मैं अभी अपने यूपीआई हैंडल से पेमेंट करना चाहूंगा। ये रिक्वेस्ट मेरे यूपीआई ऐप में चली जाएगी। जैसी मैंने पेमेंट सबमिट कर दी सक्सेसफुली, मेरा पेज जो वेलकम पेज का है वो चेंज हो गया। वहां पे उसने पूरी डिटेल्स दे दी कि सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट कब से मेरे लाइसेंस का स्टार्ट हुआ है, इस पर्टिकुलर एड ऑन का सब्सक्रिप्शन एंड डेट एंड पर्टिकुलर एक्टिव सीरियल डेट, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। प्लस आपने जो मेल आईडी दी है उसमें आपके पास डिटेल्स भी आ जाएंगी, एंड विद इन 24 आवर्स आप को एडवाइस भी आ जाएगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी अलॉन्ग विद जीएसटी जो वैलिड आपका हुआ उसकी एक एडवाइस भी आ जाएगी। अब मैं यहाँ जाके डाउनलोड प्लगइन पे क्लिक करूंगा। जब मैं ये डाउनलोड प्लगइन करूंगा ये एक विनजिप फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट के टाइम पे हमें बिजी का सॉफ्टवेयर हमेशा बंद रखना है। सो ये अब हो गया। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये हमारी सेटअप फाइल आ गई हमारे पास, इसको हमें डाउनलोड करना है। सो अगेन आई एम सेइंग whenever we are processing this setup file process, we have to make sure that busy software is not open. busy ERP बंद होना चाहिए। ये सेटअप फाइल एक्सट्रैक्ट होगी, ये ऑटोमेटिकली सेव होगी जहां पे मैंने बिजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। ओनली रिक्वेस्ट इज, अभी कुछ टेस्टिंग्स में हमें पता चला है कि बहुत सारे कस्टमर्स के हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स में या किसी सर्वर पे हमने इसको ऑनबोर्ड कर रखा है। सो सेटअप फाइल हमेशा हमें उधर ही डालनी है जहां पे हमारी बिजी की सेटअप फाइल है, चाहे वो सर्वर हो या कोई और पोर्टल हो या फिर वो पीसी हो। ये फाइल सक्सेसफुली हो गई। अब हम बिजी ओपन करेंगे। बिजी ओपन हो गया, मैं अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूं।
जैसे कि हमने डाउनलोड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड बैंकिंग मेरा प्लगइन ऐड ऑन पे आ चुका है। कनेक्टेड बैंकिंग को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप ये मोबाइल नंबर मांग रहा है वेरिफिकेशन करने के लिए। मैं वही मोबाइल नंबर डालूंगा जो मैंने उस टाइम पे प्लेटफॉर्म पे डाला था। एक ओटीपी आएगा सो दैट आई कैन वेरीफाई। जैसे ही ओटीपी सक्सेसफुल होगा हमारे पास लॉगिन आईडी की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये जो हम डिटेल्स आप डाल रहे हैं ये मेरे आईसीआईसीआई बैंक करंट अकाउंट की सीआईबी क्रेडेंशियल्स है और करंट अकाउंट की नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स है, जो हर कस्टमर जो करंट अकाउंट यूज करता है उसको पता होता है। आप लोगों ने या तो एलियास आईडी क्रिएट करा होगा, तो एक एलियास आईडी होता है तो यहाँ से एलियास आईडी डाल के भी रजिस्टर हो सकता है, या फिर कॉर्पोरेट आईडी डॉट यूजर आईडी जैसे कि नेट बैंकिंग पे होता है। जैसे ही होगा मैं रजिस्टर क्लिक करूंगा, ये वैलिडेट कर रहा है मेरी क्रेडेंशियल सही है या गलत है। वैलिडेट हो गया, ये डिटेल सही है। अब मेरे को चेक स्टेटस करना है कि जो मैंने एक बार इनिशिएट करी है रिक्वेस्ट इसको अपने अकाउंट को लिंक करने की, उसका स्टेटस क्या है। वो पेंडिंग दिखा रहा है। मैं अप्रूव में क्लिक करूंगा, यहाँ पे गो टू सीआईबी पे क्लिक करूंगा। गो टू सीआईबी के पेज में आपको क्लियरली दिख भी रहा है, सारे स्टेप्स हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं। यहाँ पे दोबारा से मैं अपनी सीआईबी डिटेल्स डालूंगा। जैसे सीआईबी डिटेल्स में डाल लूंगा मेरा ये होम पेज आ जाता है नेट बैंकिंग का। यहाँ पे हमने एक सेपरेट ऑप्शन दे रखा है कनेक्टेड बैंकिंग। कनेक्टेड बैंकिंग में क्लिक करेंगे। कनेक्टेड बैंकिंग में क्लिक करके कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल्स का एक सबसेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे एंड वहां पे कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल्स डालेंगे। जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि ये रिक्वेस्ट मेरे बैंक प्लगइन से यहाँ पर आई है इनिशिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ बिजी ईआरपी प्लगइन का नाम भी आ रहा है। मैं इसको जाके यहाँ से अप्रूव कर दूंगा। जैसे ही अप्रूव करूंगा सो मेरे जो करंट अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं स्टेटस। डन कर दिया। अब हमारे को नेट बैंकिंग दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, कभी भी यहाँ से लॉग आउट करके हम बिजी पे वापस आएंगे। अभी हमने चेक स्टेटस देखा था तो हमारे को पेंडिंग दिखा था, अब हम चेक स्टेटस देखेंगे हमारा क्या स्टेटस है रजिस्ट्रेशन का। और ये सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया। और ये हमारा प्लगइन है जिसमें हमने ये इनिशियल जो जैसे हमें जी ने बताया था, ये हमारे 4 फीचर्स हैं जो अभी हमने इनिशिएट किए हैं। सबसे पहले हम चेक बैलेंस में जाएंगे। चेक बैलेंस में जाने के बाद में अगर हम चाहें, हमने जो मेन अकाउंट क्रिएट कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक का, तो यहाँ से क्लिक करके मेन अकाउंट को नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंट रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव अकाउंट का F9 का हमने एक शॉर्टकट भी दे रखा है, अलॉन्ग विद दैट लिस्ट ऑफ रिमूव अकाउंट जो हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स इसमें मेन पे हो सकते हैं बाकी मल्टीपल बैंक्स के। तो यहाँ पे सबका बैलेंस जो है वो दिखेगा एरर के फॉर्म पे, सो उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे अकाउंट्स हैं मेन हमारे। बैलेंस हमारा अपडेटेड यहाँ पे आ रहा है। रिफ्रेश बैलेंस हम एंटर करके भी कर सकते हैं या बटन भी दे रखते हैं। नाउ विल गो टू दी बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट। बैंक रिकंसिलिएशन में 2 फीचर्स दिखेंगे। पहले फेच स्टेटमेंट दिखेगा, जो अकाउंट मैंने खोला हुआ है उसी का मैं स्टेटमेंट फेच कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप या डेबिट क्रेडिट, एंड यहाँ पे जाके मैं फेच स्टेटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। ये पूरी स्टेटमेंट की डिटेल्स मेरी आ गई है। डायरेक्ट यहाँ पे कोई बैंक की नेट बैंकिंग पे जाके एक्सपोर्ट एक्सेल करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इसी के नीचे आप बटन देख सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी ऑप्शन दे रखा है। सर्च करके कोई ट्रांजेक्शन देखनी है वो भी कर सकते हैं, प्लस बैंक रिकंसिलिएशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम बैंक रिकंसिलिएशन पे क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।
ऊपर जो है ये मेरी आईसीआईसीआई बैंक की स्टेटमेंट दिख रही है, जिसके अंदर मुझे स्टेटस दिख रहा है पेंडिंग। नीचे जो है मुझे बिजी के वाउचर्स दिख रहे हैं। ये पूरे डेट रेंज है। बिजी के वाउचर्स को मैं बैकडेटेड एंड आगे का अगर कोई देखना चाहूँ तो मैं एंड डेट का बेसिस पे इसे सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को 3 चीजें दिख रही हैं कि अगर ये पर्पल रंग का दिखेगा स्टेटस तो यानी कि रिकनसाइल्ड एंट्रीज है। अगर रेड कलर का दिखेगा तो दैट मीन पार्शियल एंट्रीज हैं, जो कि बेसिकली अमाउंट दिस वाउचर एंड जो ट्रांजेक्शन आपने सेटल करी है उसके बेस पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेंडिंग एंट्रीज दिख रही हैं। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी ये सारी पेंडिंग एंट्रीज हैं। मैं जस्ट फॉर एक ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए मैनुअल रिकंसिलिएशन कैसे होगा, मैं एक ट्रांजेक्शन को आपको सेटल करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक एनईएफटी हो रखी है मेरे अकाउंट से, और सपोज मुझे ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिकंसाइल दिस एंट्री पे क्लिक करूंगा एंड सेव रिकॉर्ड्स कर दूंगा। ये मेरी रिकंसाइल हो गई एंट्री और नीचे से वो वाउचर चला गया। आप देख सकते हैं वो नीचे से वाउचर चला गया और वो एंट्री सेव हो गई। पहले मेरे नीचे 2 ट्रांजेक्शंस पेंडिंग थे, अब सिर्फ एक पेंडिंग है और वो जो एंट्री है वो मैंने ₹1 की यहाँ पे रिकंसाइल कर दी है। सो बहुत इजीली हम अपना रिकंसिलिएशन मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ थर्ड फीचर इज इनिशिएट पेमेंट। इनिशिएट पेमेंट जो एक ऑप्शन है, यहाँ पे जितने भी वाउचर्स आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे हमारे को, जिसमें हमें पूरा स्टेटस दिखेगा कि सेटल है, पेंडिंग है या उसका पर्टिकुलर स्टेटस क्या है। और हम यहाँ से जाके ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। सैम्पलिंग के लिए मैं एक वाउचर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। पेमेंट पे जाएंगे, ऐड क्लिक करेंगे, सो मैंने ये एक डमी अकाउंट क्रिएट कर रखा है। मैं इसमें ₹1 के IMPS ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा वाउचर क्रिएट हो गया। इनिशिएट पेमेंट पे वापस जाऊंगा, चेक पेमेंट से जब क्लिक करूंगा, मैंने डेट रेंज अभी सारा ले रखा है सो दैट आपको सारे स्टेटस यहाँ दिखे। ये मेरी नॉट इनिशिएटेड में स्टेटस में दिख रहा है आपको। मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करना चाहूंगा, सो मैं एंटर भी दबा सकता हूँ या पे नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ। ये पूरी डिटेल्स आ रही हैं, जो अकाउंट नंबर है, उनका IFSC कोड क्या है, डेबिट कौन सा मेरा अकाउंट नंबर हो रहा है, पूरी डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं स्पेस बार दबा के चेक करूंगा कि मुझे किस पोर्ट से करना है, क्योंकि HDFC में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं IMPS से ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ इमीडिएटली दिखाने के लिए। सो रिमार्क्स में मैंने डाल दिया टेस्टिंग। सेंड OTP क्लिक हुआ है। अब जो OTP आएगा ये हमारे करंट अकाउंट का जो रजिस्टर्ड है उस पे OTP जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ICICI बैंक का प्रोसेस फ्लो फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पे मेकर चेकर होगा तो यहाँ से फिर वो नेट बैंकिंग में भी जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है तो मैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन अपने आप ही अप्रूव कर सकता हूँ। 524584 ये OTP डाल दिया हमने। जैसे ही पे नाउ क्लिक किया, ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई। आपके सामने है जो ट्रांजैक्शन अभी इनिशिएट पेमेंट में दिख रही थी वो यहाँ पे सेटल दिख चुकी है। यहां से क्विट करेंगे, बैंक रिकॉन में दोबारा जाएंगे, हम बैंक रिकॉन पे आ रहे हैं। यहाँ पे अब हम इसलिए आए हैं ताकि हम ये देख पाए कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमने अभी करी है क्या वो मेरे नीचे वाउचर में पेंडिंग दिख रही है या नहीं दिख रही। सो देख सकते हैं पार्टी नेम प्रीति दीवान की कोई भी यहाँ पे पेंडिंग नहीं दिख रही। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्टी नेम प्रीति दीवान की जो अभी ₹1 की हमने IMPS की थी, 27 नंबर वाउचर था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकंसाइल दिख चुका है। स्टेटस में मुझे रिकंसाइल दिख रहा है। ये जो रिकंसिलेशन यहाँ पे दिख रहा है ये हमारे लेजर के रिकंसिलेशन में भी ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो रहा है। वहां पे आप जाके चेक करेंगे तो वहां भी आपको रिकंसाइल दिखेगा। और अब हम लास्ट फीचर पे आते हैं जो कि फेच बैंक रिसिप्ट्स हैं। ये फेच रिसिप्ट्स अभी हम नेक्स्ट फेज में विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स हम इसे लॉन्च करेंगे। यहाँ पे जो भी वर्चुअल अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम यहाँ पे दिखा पाएंगे कि किस पर्टिकुलर
वेंडर ने आपको पेमेंट करी है और अगर आपने उसको स्पेशल अकाउंट नंबर दे रखा है तो आप उसको बहुत इजीली एलोकेट कर पाएंगे। ये हमारा 4 फीचर्स का प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है अभी प्राइमरी फेज का यही है। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज द ओनली अबाउट द डेमो सेशन। नाउ